Good morning, class. So, if you are absent today, okay. So, we'll continue with our chapter which we were doing. So, basically, we have finished all the topics which were in chapter number 2. That was end of bipolarity, which are there in your syllabus. So, we have covered all the topics. You must have taken the reading, I hope. And without reading, it won't work for you. You need to take the reading for the complete understanding. Although I'm explaining the chapter here. So today, I would like to tell you some of the added topics to this chapter. As I told you, third chapter, जो आपका US hegemony है, that has been deleted from the syllabus. Deleted in the sense where some topics have been removed and some have been merged with chapter number 2. तो कुछ topic of chapter number 3 have been added to chapter number 2. तो जो end of bipolarity है उसके अंदर these are the additional topics. Some are from chapter number 3, that is US hegemony, and some are new topics which were not earlier in your syllabus. Book में ये topics नहीं है कुछ, but some are the topics of the chapter number 3. Is it clear? Yes, coming both of you. Still fast. Any confusion regarding the content of the chapter? Anyone Dawa? Chapter number 2, end of bipolarity. We have covered all the topics. These are the new topics which are added to chapter number 2. And these topics like unipolar world, Middle East, like Afghanistan, and Gulf War. These three topics are from chapter number 3, that is US hegemony. वो chapter delete हो गया, पर उसको किसी साथ merge कर दिया है chapter number 2 के साथ. And CIS, that is Commonwealth of Independent States. इसका नाम आया था फर्स्ट चैप्टर में कोल्ड वॉर में, बट इसके बारे में एक वीडियो लेंगे छोटा सा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक व्हिच हैज बीन एडेड नाउ. Okay, and 21st century Arab Spring, you must have heard, exam में भी दिया था. This is a new topic. So we'll cover these two topics which are the new topics. These three are the topics from chapter number US hegemony. So we'll cover this one by one. Unipolar world also, you know it. We have explained it कैसे disintegration हुआ. US became the unipolar world under US. So these are the new topics which we have to cover in chapter 2. It means chapter 2 बहुत आपका बड़ा हो जाता है in terms of content and weightage भी उसका ज़्यादा है. बस सीधा PDF which I have sent you. Chapter wise इसमें कितना मार्क्स है? So इसमें चैप्टर में अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको. So we have to cover these topics. So I think हमने जब पढ़ा रहा था तो हमने US hegemony चैप्टर कंप्लीट किया था. जिसने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए होंगे उनको आता भी होगा काफी कुछ इसमें से. So today I am starting with Gulf War. Okay, so we'll start because बुक में सीरीज में अगर दिया हुआ है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो we'll cover Gulf War. But there were two Gulf War जो हमारे सिलेबस में है, Gulf War 1 and 2. So we'll today study Gulf War 1. So you don't have to be confused. जब Gulf War आएगा तो I will give you कि उसको differentiate कैसे करना है आपको, कि they are asking question about which Gulf War. So today the Gulf War, the first Gulf War is called we call the first Gulf War जो हुआ था invasion of Kuwait by Iraq, इसको हम फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं. ठीक है, सो इज इट क्लियर? जो कंटेंट बता रहा हूं फर्स्ट गल्फ वॉर किसको बोलेंगे? सो दीज आर द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट. जब भी हम वेस्ट एशिया बोलते हैं और आई विल कॉल इट अ मिडिल ईस्ट, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया जिसमें दीज आर द इस्लामिक कंट्रीज. सो इसमें थ्री इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत. ये जो कंट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेजन ऑफ कुवैत व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट गल्फ वॉर. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या इवेंट हुआ था कि हम इसको पढ़ रहे हैं एज द गल्फ वॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस मैप. दिस इज ईरान, दिस इज इराक, below that is Saudi Arabia, and this is Kuwait, and these are the petrol producing countries, okay, of Middle East. This was Iran was supported by USSR and Kuwait was supported by US. This is a location of Israel which will study in I think alternative centers of power. We'll study about this particular state. क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो सारी कंट्री कैसी इस्लामिक कंट्रीज हैं. ठीक है, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं. दिस इज द ओनली कंट्री वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट जो कैसी कंट्री है, जूइश कंट्री है. इसके बारे में डिटेल विल टेक लेटर ऑन. फिलहाल these four are the important regions where you have to concentrate. Let me show you in the map so that it would be clear. अगर आपके पास मैप है तो आप देख सकते हो. This is the location. येलो पार्ट दिख रहा है सऊदी अरेबिया. This is ब्राउन पार्ट इज ईरान. This pink is इराक. एंड उसके बॉटम में बहुत छोटा सा कंट्री है which is कुवैत. बट कुवैत में बहुत ज्यादा ऑयल होता है. जो ये लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कुवैत का है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? ऑयल का. ठीक है, और इसके अंदर ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं आप, ओशन से कनेक्ट हो रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ. और पहले ईरान वाले रीजन को भी दे यूज्ड टू के पर्शियन नाम था इस एरिया का. क्या कंट्रीज नहीं थी, इसको पर्शियन ही बोला करते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ. अगर आप लोकेशन बन रही है इस टाइप से, दो लैंड है ऐसे और इसके अंदर वाटर आ रखा है काफी डीप, इस टाइप से कोई लोकेशन बन रही है, अगर इसमें वाटर फील्ड है तो इसको क्या बोलते थे?
गल्फ रीजन बोलते थे। तो ये एक टाइप से गल्फ बना हुआ है। तो जब यहाँ पर वॉर हुई है तो इस वॉर को क्या बोला हुआ है? गल्फ वॉर, क्योंकि इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? These are the Gulf countries, those countries surrounding this Gulf, these are the Gulf countries। जो ये रीजन है ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन की वजह से, तो पता होना चाहिए कि गल्फ वॉर क्यों बोल रहे हैं। इस रीजन में जो ये वॉर हुआ था इसको बोला गया फर्स्ट गल्फ वॉर, फिर सेकंड गल्फ वॉर। ओके, तो हम फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी लोकेशन देख लिया आपने, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और कुवैत। बहुत छोटा सा नीचे ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है वैसे, तो आप अपने मैप में भी देख सकते हैं बुक में। सो याद रहे ये एशिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट एशिया। बट इफ वी सी इन द एंटायर ग्लोब और एंटायर मैप, सो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट। यूएस की ईस्ट में आ रहा है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट। तो वेस्ट एशिया बोले या मिडिल ईस्ट बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एक टॉपिक तो आज का ही हो जाएगा गल्फ वॉर। फिर हमारा एक और टॉपिक क्या है हमारा? ईस्ट क्राइसिस, जिसमें अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो अफगानिस्तान का है, बहुत दूर है, इसके ईरान के बिल्कुल बगल में, तो इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट क्राइसिस, जो हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। वो यूएसएसआर का हमने जो वॉर पढ़ा था फॉर 10 लॉन्ग इयर्स, ऑल अबाउट दैट वी स्टडी इन दिस। तो जब हम मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं या ईस्ट बोल रहे हैं, मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं सॉरी, या वेस्ट एशिया बोल रहे हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो बेसिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द लोकेशन। जब आपके माइंड में लोकेशन रहेगी, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस। दिस वीडियो इज वर्किंग, आई हैव फॉरगॉटन। पॉज है और नंबर्स आर चल रहे हैं, ऑन है। No, it's working. The symbol is to pause hand. If I pause it, then it will show for the playing. Okay. So let me tell you some of the important details of these countries. What happened? First of all, Iraq executed Kuwait and Saudi Arabia for its economic loss of around $100 billion. तो यहाँ पे इनके बीच जो प्रॉब्लम्स थी वो किससे थी? ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। इनका ये कहना था, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए, ईरान और इराक पहले वॉर में थे 1980 से 88। 1980 से 1988 इस टाइम तक इन दो के बीच में वॉर चला है। इसके बीच में इराक है, ईरान। रीजन क्या था वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जो बता रहा हूँ वो भी इतना आपका मैटर नहीं है, बट आई वांट कि एटलीस्ट जो बेस है इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो दे वर इनटू वॉर सिंस 1980 टू 1988 फॉर द रीजन वाज देयर वाज इस्लामिक रेवोल्यूशन। दैट वाज द इस्लामिक रेवोल्यूशन। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देयर differences between Shia and Sunni. So this was the matter, Shia Sunni और differences थे। That was for Islamic revolution between Iraq and Iran जो चला 1980 से 88। इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की जरूरत पड़ी। इकोनॉमी, so Iraq was supported by Saudi Arabia and Kuwait. Saudi Arabia and Kuwait ने सपोर्ट किया था किसको? Iraq against the war with Iran. On the other hand, Iran was supported by USSR. Iraq was also given support by US. तो ये वॉर चल रहा था, तो इससे क्या इंसिडेंट्स निकल के आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। इराक अक्यूज्ड कुवैत, इराक ने इल्जाम लगाया, अक्यूज मींस किस पे? कुवैत पे, सऊदी अरेबिया फॉर इट्स इकोनॉमिक लॉस ऑफ अराउंड $100 बिलियन। उन्होंने बोला हमारा $100 बिलियन का जो है नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? एज इराक सेड कुवैत डिड क्रॉस ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। यहाँ पे क्या था, इन्होंने क्या बोला, ये बहुत क्लोज लोकेशन था इराक का, अंडरग्राउंड होकर के इराक जो कुवैत है किसका ऑयल चोरी कर रहा था? ऑफ इराक। जो एरिया ज्योग्राफिकल रीजन जो इराक के अंडर आ रहा था, दैट वाज टेकन बाय और ड्रिल्ड बाय कुवैत। तो ये इल्जाम इस पे लग गया एक तो, ठीक है। देन कुवैत वाज एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल लिमिट। इस चीज को समझना पड़ेगा। जितनी भी कंट्रीज की इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइसेस को कंट्रोल रखता है ऑयल के अराउंड द वर्ल्ड। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है कुवैत का, कुवैत तो उस प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने लग जाएगा ऑयल, तो ऑयल के जो प्राइसेस है मार्केट में क्या हो जाएंगे? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने, डिमांड है किसी चीज की पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट कैसी होगी? लो हो जाएगी। तो अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन करने लगे तो वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड जो प्राइस है पेट्रोल का वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वही अगर हम बहुत लिमिटेड स्टॉक देंगे वर्ल्ड को स्लोली, तो उसके लिए क्या होगा? डिमांड बहुत इंक्रीज रहेगी। जब डिमांड इंक्रीज रहेगी इट मींस प्राइसेस विल बी हाई। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने इस टाइप का एक सेटअप बना रखा था वेयर दे हैड फिक्स्ड द प्राइसेस एंड प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कितना प्रोड्यूस करेगी। बट कुवैत ने इसका भी वायलेशन किया और ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी। ये भी एक रीजन है। Kuwait was exceeding production of oil limit, so Iraq said to Kuwait in 1990 to pay compensation for all economic losses to Iraq and else it will attack. तो यहाँ पर इराक ने कुवैत को बोला जितने भी इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं इराक के बिकॉज ऑफ
कुवैत, उसको वो पे करना पड़ेगा और एल्स इट विल एनेक्स इट और इट विल ऑक्यूपाई कुवैत। कुवैत इतना पावरफुल नहीं था, छोटा सा था, पर यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, बहुत क्लोज था ये गल्फ रीजन के। ओके, इन द टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर इनकी एक टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ दीस कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है कि कुवैत विल पे 10 बिलियन डॉलर्स टू इराक। मतलब ये जो है कुवैत कितने बिलियन डॉलर देगी, 10 बिलियन डॉलर देगी किसको, इराक को। बट फाइनली यहाँ पे ये डिसीजन आता है कि कुवैत कितने बिलियन डॉलर देती है, ओनली 9 देती है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इन्वेजन ऑफ कुवैत, बस किस वजह से हो गया, 1 बिलियन डॉलर, क्योंकि उन्होंने 10 मांगी, इन्होंने कितने दिए, 9 दिए, बस 1 मिलियन डॉलर की वजह से ये जो हम बोलते हैं इन्वेजन ऑफ कुवैत, जिसमें फिर एंट्री किसका है। एक्चुअली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यूएस की कैसे दादागिरी चल रही थी, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे वर्ल्ड को, जहां पे उनका रोल नहीं था वहां पर भी आके वो इन्वेड कर रहे थे। तो अभी नाम यहाँ पे आ रहा है बस कुवैत का और किसका, इराक का, बट हम यहाँ पे देखेंगे रोल इंपॉर्टेंट किसका है, यूएस का। सो यहाँ पे ये होता है कि फाइनली 9 बिलियन पे करते हैं, जिसकी वजह से वॉर होता है इराक और कुवैत के बीच। वॉर भी क्या होता है, इजिली एनेक्स, क्योंकि जो इराक की आर्मी थी 4th लार्जेस्ट थी एट दिस मोमेंट, 4th लार्जेस्ट आर्मी इराक की थी। ठीक है, तो ये बाकी तो ये बैक जस्ट हिस्ट्री थी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड बाकी मैं आपको इस बुक से ही पढ़ाऊंगा। इतने में किसी को प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे थे, ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंसेस थे। इन दोनों का जब वॉर चल रहा था 1980 से 88 याद रखेंगे, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी की जरूरत पड़ी इराक को। सऊदी अरेबिया एंड कुवैत सपोर्टेड इराक, बट उसके बाद क्या हुआ, इनका दूसरा इश्यू हुआ कि यहाँ से क्रॉस रिलीव करने लगा कुवैत, जो रीजन इराक के अंदर आता था। ऑलरेडी ये लॉस में चल रहा था, बहुत ज्यादा लोन थे इसके ऊपर, डेब्ट्स थे, कर्जा कहते हैं जिसको, इसे पे करना था। उसके बाद यहाँ से चोरी होने लगी, तो इनके बीच में डिफरेंसेस आए, एंड कुवैत वाज आल्सो सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया। फिर ये रीजन एक वर्ल्ड इशू बन गया, यहाँ पे यूएस सपोर्टेड इराक एंड यूएसएसआर सपोर्टेड ईरान। सो ये फिर इन्वेजन ऑफ कुवैत कैसे होता है, वो हम पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए एक हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, विच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक, बस हल्का सा बता दिया है, इतना क्लियर, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है, फिर तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे की हिस्ट्री बहुत होगी, ये वॉर क्यों हुई उसकी बहुत हिस्ट्री होगी, बस हमें अपने कंटेंट से ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो हल्का सा आपको ये ना लगे कि इन्वेजन हुआ क्यों, तो थोड़ा सा दिस आइडिया है गिवन यू, हल्का सा क्लियर हो गया होगा, मैप की लोकेशंस एटलीस्ट क्लियर हो गई होंगी। व्हाई वी कॉल इट द फर्स्ट गल्फ वॉर, गल्फ रीजन की वजह से, पर्शियन गल्फ जो पहले था। सो दिस थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम योर बुक, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग यहाँ से ले लेता हूँ, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो दिस बुक, दिस टॉपिक, यहाँ से अगर जब आप पढ़ोगे ये टॉपिक को ही पढ़ लेना, बिकॉज आपकी बुक इसमें जो मैंने एडिशनल टॉपिक्स बताई, उसमें एक और टॉपिक थी, उसका नाम क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड। I hope you all will be able to write about this topic। ये हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कोल्ड वॉर, उससे हम यही पढ़ रहे हैं, तो बहुत चीजें लिखने को, बट स्टिल बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द sudden collapse of the Soviet Union took everyone by surprise, while one of the two superpowers ceased to exist and other remained with all its powers intact। वही disintegration की बात कर रहे हैं, one collapsed and other remained intact as it is, मतलब यूएसए इंटैक्ट रहा। Even thus it would appear that the US hegemony began in 1991। इसका मतलब हर स्टूडेंट को क्या लगता होगा कि यूएस की जो दादागिरी है, जो डोमिनेंस है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, कब से शुरू हुआ है, 1990, ऐसा हमें लगता है। बट इफ वी गो टू द हिस्ट्री ऑफ यूएस एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यू विल रियलाइज, सबको पहले रियलाइज नहीं हुआ, बट लेटर वी रियलाइज that we were already living in a hegemonic world which was run by US since 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे ऑन जापान और 2 cities, हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल। फ्रॉम, अगर हम बाद में रियलाइज करते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, दैट ऑलरेडी वी वर लिविंग, हमारे 2 सुपर पावर्स तो थे, बट स्टिल द होल वर्ल्ड वाज कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, culture, society, everything was dominance of US from 1945 में हमने बाद में realize किया। That's why it's written here. Thus it would appear that the US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international scene। This is largely correct। ये करेक्ट है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बोले तो ये करेक्ट है कि जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, that was run by only one super power, that is US। This is largely correct, but we need to keep in mind two riders of this। अपने माइंड में 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
First, as we shall see in this chapter, some aspects of US hegemony did not emerge in 1991, but in fact go back to the end of Second World War. But कुछ events हम ऐसे पढ़ेंगे जो 1991 के बाद नहीं, 1945 से ही दिखाता है कि US was so dominance on the world platform. Globally सारी कंट्रीज को कैसे डोमिनेट करता था US, ये हमें बहुत पहले से भी पता चलता है. अगर हम देखेंगे तो events like the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later than the world was in fact living in a period of hegemony. हम पहले से ही we were living in a period of hegemonic power under US. Let us therefore look into the process by which US hegemony got established more closely. But क्या हुआ after 1991? क्या हुआ? We could establish and we could realize that in fact we were already living in a hegemonic world. ये चीज को realize हमने 1991 के बाद किया है when one of the superpower disintegrated, but actually we were already living in the hegemonic world since 1945. Although there were two superpowers, but still US was more dominant. If you see various events now, तभी चैप्टर का नाम क्या था? US hegemony. भले ही चैप्टर नहीं है, बट उसको आपको सीरीज को समझना पड़ेगा. इस चैप्टर के अंदर ये वाले इवेंट्स को क्यों लिया है? क्योंकि ये इवेंट्स है तो पुराने 1990s की बात हो रही है, ठीक है? तो मतलब डिसइंटीग्रेशन से पहले भी यूएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, कितना डोमिनेंस था, दैट विल सी इन वेरियस टॉपिक्स व्हिच विल कवर इन दिस चैप्टर. नॉट चैप्टर, विच टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है. गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, सो वहां सबसे हमें पता चलेगा यूएस कितना डोमिनेंस पहले से भी था. सो विद दिस एक आगे में रफ आइडिया थोड़ा सा बता दिया यूएस हेजेमनी क्या है. अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेजन ऑफ कुवैत. ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था. इफ यू वांट सम पॉइंट्स यू कैन ऐड इन एग्जाम में, गलत नहीं कर सकता है, बट एनसीईआरटी बुक में नहीं है. एनसीईआरटी बुक में सीधा लिखा है कि 1990 में अटैक कर दिया. रीजंस क्या थे, इनका रिलेशन क्या था, लोकेशंस क्या था, दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड. एंड लोकेशन एक बार घर में मैप में देख लेना. पर्शियन गल्फ किसको बोलते हैं. So remember the date when we talk about invasion of Kuwait, which is also called first Gulf War, in August 1990. I have also written the date. 2nd August था 1990. बुक में नहीं है. If you want, you can write August 1990. Iraq invaded Kuwait. Invaded क्या होता है? किसी को ओवर पावर करना, कंट्रोल करना, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली टू कैप्चर सम स्टेट. पहले हम कॉलोनी बन जाते थे. अब जब मॉडर्न एरा में हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैप्चर करना या एनेक्स करना, कब्जा करना किसी की टेरिटरी पे. सो इराक इन्वेडेड कुवैत, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सबसीक्वेंटली एनेक्सिंग इट. आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन. अब ये बात कहां पर चली गई? यूएन तक पहुंच गई. यूनाइटेड नेशंस का बन गया था हमारा 1945. आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा यूनाइटेड नेशंस भी बन गया था. पढ़ना है हमें एक चैप्टर यूएन के ऊपर भी, तो बन गया था. तो यूनाइटेड नेशन ने बोला नाउ दिस इज वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड. डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था. And what is the purpose, basic objective of UN? To promote peace and harmony and development around the world. सारी कंट्रीज के बीच में एक बैलेंस बना के रखना. जब इस टाइप की एक्टिविटीज अगर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कि एक पावरफुल नेशन किसी छोटे नेशन के ऊपर एनेक्स कर ले, तो फिर से इम्बैलेंस और डिस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है अराउंड द वर्ल्ड. सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है. वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है. तो यूएन डिड नॉट वांटेड कि ऐसा कोई भी इवेंट किसी भी कंट्री में हो. सब जगह पीसफुल एनवायरनमेंट था ऑलमोस्ट, और मिडिल ईस्ट में काफी क्राइसिस चल रहे थे. सो यूएन इंटरवीन हियर एंड यूएन ने काफी इनको बोला इराक को कि फ्री द एनेक्स, जो एनेक्स किया जिस एरिया को, टू फ्री दैट एरिया. कुवैत को फ्री करने के लिए लीव द टेरिटरी ऑफ कुवैत एंड गो बैक टू योर कंट्री. बट देखिए तभी यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक, बहुत तरीके से समझाया गया है. Diplomatic attempts failed at convincing, but convince नहीं कर पाए इराक को to quit its aggression. The United Nations mandated the liberation of Kuwait. अब mandated क्या? Compulsory. एक order पास कर दिया कि अब हमें कुवैत को कैसे फ्री कराना पड़ेगा? By force. क्योंकि diplomatically अच्छे से बात करके, समझा करके, they are not understanding the seriousness of this war and इसका implication और इसका consequences क्या हो सकते हैं. So now by force, अब UN बोल देखिए, UN के कंट्रोल में सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं UN की. तो UN जब कोई स्टेप लेती है तो सारी मेंबर कंट्रीज क्या करती है, उसे कंट्रीब्यूशन कर देती हैं. अगर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो सारी कंट्रीज अपनी आर्मी को भेजेगी. यहाँ पर एक क्या बनेगा, कोलिशन बनेगा आर्मी का टू अटैक ऑन इराक, और यहाँ से फ्री कराएंगे किसको, कुवैत को. सो यहाँ पे एक ऑर्डर देती है. फिर जब ये बात diplomatically they did not understand, they did not follow the orders of United Nations. So finally United Nations mandated the liberation, मतलब फ्री कराना किसी को, liberation of Kuwait by force. For the UN this was dramatic decision after years of deadlock during the Cold War.
अगर ये यूएन के लिए एक बहुत ड्रामेटिक स्टेप था, डिसीजन था, बिकॉज बिफोर दिस वी हैव सीन 1990 से पहले हमने देखा है 1945 से 1991 तक, जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था यूएसएसआर, तब तक यूएन ने ट्राई किया कि कहीं पर भी कोई वॉर ना हो, हमारी कोई भी आर्मी की जरूरत ना पड़े, कहीं पर भी हम अटैक ना करें। बट ये ड्रामेटिक स्टेप था जहाँ पे यूएन को बहुत टाइम गैप के बाद एक स्टेप लेना पड़ा जहाँ पे अपनी आर्मी को भेजना पड़ा। जब मैं यूएन वर्ड यूज कर रहा हूँ, आर्मी मीन्स सबका कोलिशन होता है, जो इंपॉर्टेंट पावरफुल नेशंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं यूएन को, वो सब मिल करके आएंगे और इस काम को करेंगे, ठीक है। So for the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. The US President H.W. Bush. So you have to remember, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे वो कौन थे? H.W. बुश। नाम मिलते जुलते हैं, इनका बेटा आएगा, उनका नाम बिल्कुल लगभग सेम है, इनका H.W. बुश है, उनका क्या होगा? जॉर्ज W. बुश। H हट जाएगा, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, डोंट बी कंफ्यूज। ही वाज सीनियर बुश, इनको सीनियर बुश और जूनियर बुश से भी जाना जाता है, और इसलिए बता रहा हूँ दोनों ही हमारे सिलेबस में है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ इन्वेजन ऑफ कुवैत, इसमें इन्वॉल्व प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज H.W. बुश। बट व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 9/11 टेरर वॉर ऑन टेरर वॉर, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें इनका बेटा आ जाएगा, उनका नाम क्या है? जॉर्ज W. बुश आ जाएगा बस, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर सीनियर और जूनियर बुश। So US President George W. Bush hailed the emergence of new world order. Here इन्होंने क्या बोला? Now there is a beginning of new world order, जहाँ पे हम मिल करके सब कंट्रीज अटैक करेंगे to free and liberate this area of Kuwait from Iraq. So इसको इन्होंने बोला new world order. तो इसको अब शुरू हुआ ये ऑपरेशन। इसमें क्या हुआ? अ मैसिव कोलिशन फोर्स। कोलिशन क्या होता है? वी हैव स्टडीड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब एक साथ मिल करके। यहाँ पर एक कोलिशन बना, मैसिव कोलिशन फोर्स ऑफ 6,60,000। यू हैव टू रिमेंबर, वन आ सकता है जब हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ कुवैत में, तो कितना नंबर था? 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज। दोनों चीज याद रखेंगे, 6,60,000 ट्रूप्स थे फ्रॉम 34 कंट्रीज। इट मींस दिस कोलिशन वाज ऑफ 34 कंट्रीज, okay, which was led by US। यहाँ पे क्या दिख रही है? फिर से डोमिनेंस दिख रही है। ऑपरेशन किसके अंडर हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस के अंडर हो रहा है, बट इट्स स्टिल हु इज लीडिंग दिस ऑपरेशन? यूएस का इकोनॉमिक्स और मॉरल पॉलिटिक्स सारा सपोर्ट बहुत ज्यादा था यूएन को, बहुत ज्यादा खर्चा यूएन की एक्टिविटीज में कौन करता था? यूएस। तो यूएस हैज ऑलवेज अपर हैंड जब पॉलिसीज की बात होती थी, कहाँ? यूएन की। सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर था यूएस। So यहाँ पर the massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated in what came to be known as the first Gulf War। ये 34 countries ने एक साथ अटैक किया इराक के ऊपर, कुवैत में, और बहुत जल्दी इनको एनेक्स कर लिया, इनको यहाँ से हटा दिया, एंड दिस वाज कॉल्ड द फर्स्ट गल्फ वॉर। बहुत शॉर्ट में दिया आप लोगों का, डिस्क्राइब नहीं किया, इंडियन सिटीज में गए क्या क्या हुआ। सो जितना लिखा है आई थिंक विल कीप अप टू दैट, क्योंकि आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस आई हैव टोल्ड यू ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे फर्स्ट गल्फ वॉर इसी को बोला है, जब 34 कंट्रीज के 6,60,000 ट्रूप्स, जो एक कोलिशन था फोर्सेस का, अटैक ऑन इराक टू लिबरेट और फ्री कुवैत फ्रॉम द रूल ऑफ इराक ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। सो हाउएवर the UN operation which was called Operation Desert Storm. Now you have to see इस रीजन को हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बोला, पर इसका नाम एक और क्या पड़ा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट हियर, क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। इसी ऑपरेशन को हमने क्या बोला है? ऑपरेशन, याद रखना। कई बार हो सकता है बस सीधा आ जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? You know the story, you know about Gulf War, you know about invasion of Kuwait. It happens with most of the students, even when I was in class 12. बहुत बार I used to be confused actually बात हो किसकी है? First Gulf War, invasion of Kuwait या Operation Desert Storm, Operation Shield भी था, वो भी इसी का नाम था एक और, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट यू हैव टू रिमेंबर, अगर डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इट मींस हम बात कर रहे हैं 1990 का, जो कुवैत में इन्वेंशन किया था किसने? इराक ने, और फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया था? यूएन का ऑपरेशन, प्लस यूएस ने उस ट्रूप को लीड किया था, 6,60,000 ट्रूप्स को, और बाय फोर्स यहाँ पे लिबरेट कराया था, फ्रीडम दिलाई थी किसको? कुवैत को, फ्रॉम द रूल ऑफ इराक। इराक में इस टाइम कौन थे? बहुत सद्दाम हुसैन, याद रखना, ठीक है। ये कब से इन्होंने रूल किया है इस एरिया में?
He was a dictator, सबसे बड़ा वर्ड आ जाता है डिक्टेटर। तानाशाह जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनका था 1979 से 2003 तक इसको यूएस आर्मी ने पकड़ लिया था। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। फिर फाइनली ये इनका टाइम पीरियड था व्हेन ही रूल्ड दिस एरिया ऑफ कुवैत एज अ डिक्टेटर। ही वाज वेरी ब्रूटल, उनकी पॉलिसीज बहुत डिफरेंट थी, तो इसीलिए इनको बहुत पावरफुल भी माना जाता था। सद्दाम हुसैन, सबने सुना हुआ होगा ना कहीं नाम। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। जब हम इस वॉर की बात कर रहे हैं, ही वाज द मेन लीडर ऑफ दिस वॉर। इसमें बहुत चीजें उन्होंने बोली थी, पढ़ी भी है मैंने, बट आई थिंक आपकी बुक में नहीं है, तो विल नॉट डिस्कस दैट। सो दिस ऑपरेशन which was called Operation Desert Storm was overwhelmingly American। किसका था ऑपरेशन? यूएन का था, डेजर्ट स्टॉर्म। बट देखा जाए तो वो वाज कंट्रोलिंग द ऑपरेशन यूएस। क्योंकि हम बात ही किस चैप्टर की कर रहे हैं, यूएस हेजेमनी दिखाना चाह रहे हैं। इस इवेंट्स को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड पे अपनी हेजेमनी, अपना डोमिनेंस दिखा रहा था यूएस। दिस ऑपरेशन वाज अंडर यूएन, जिसके अंडर इतनी सारी मेंबर कंट्रीज थी, बट स्टिल दिस एंटायर ऑपरेशन वाज लेड फॉरवर्ड बाय यूएस। जो 6,60,000 जो ट्रूप्स थे, उसमें भी अराउंड 75% ऑफ द जो आर्मी के ट्रूप्स थे वो किसके थे? यूएस के थे। कैन यू इमेजिन? एक ही कंट्री के वो कितना पावरफुल है? 75%, 6,60,000 का जो भी 75% है, दैट नंबर ऑफ ट्रूप वाज ओनली ऑफ यूएस। तो ये डोमिनेंस दिखाता है यूएस की। सो एन अमेरिकन जनरल एंड दिस ट्रूप वाज लेड बाय द अमेरिकन जनरल। आर्मी का जो जनरल था उनका नाम था नॉर्मन, इनका नाम थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, देख लेना, सेचवॉरकोव्स। This was the American general. It can come for 1 mark. Who was the general, American general who led the operation of Desert Storm? So you must know this name. Led by UN coalition, and nearly 75% of the coalition forces were from US. As I told you, 75% इनकी थी। Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles, the Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait. जो सद्दाम हुसैन थे, जो प्रेसिडेंट थे, he had promised the mother of all battles means he was not so powerful as compared to, इनकी भी फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी थी, but as compared to the UN forces जो 34 कंट्रीज का था, उनके सामने ये कुछ भी नहीं थे। But he was so confident, जब ये वॉर चल रही थी, स्पीचेस आते हैं इनके, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स आती है, he was ready to face this coalition easily। ऐसा लग रहा था इनको कौन बैकअप कर रहा है इतना, he is so confident कि we will able to have a good struggle with this particular coalition of US। उनको इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा था? He called कि ये जो बैटल हो रहा है, it will be called as the mother of all battles in the history। ये जो बैटल हो रहा है, इसको बोला जाएगा mother of all battles। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत इजीली यूएन फोर्सेस ने या यूएस ने जो लेड किया था ट्रूप्स को, इजीली इसको एनेक्स कर लिया था और ओवरथ्रो कर दिया था इराक को फ्रॉम कुवैत। That's why it's written at the last, the Iraqi forces were quickly defeated, easily defeat कर दिया था, forced to withdraw from Kuwait। और कुवैत से इनको withdraw कर दिया था। The first Gulf War revealed the vast technological gap। Now this question arises, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, invasion of Kuwait। अब यहाँ से कुछ नई स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इस गल्फ वॉर को हमने क्या बोला? टेक्नोलॉजिकल वॉर बोला है, वीडियो गेम वॉर बोला है। इस टाइप से 2-3 चीज। चलो मैं इसको फिनिश करूंगा, मुझे 1 मिनट मिलता है और ठीक है, अभी आई विल स्टॉप इट हियर।